Hello my dear students and welcome once again to Zenith Academy Online. Today we are doing a very important topic, pricing for ICSE class 10 commercial studies. So let's begin. In this video I'll explain in such a way that you will be able to score full marks in your exam, and I will explain every concept. Now in this chapter the main two topics that are there for scope of your syllabus is the meaning of pricing and the objectives of pricing. So let's begin. What is pricing? Pricing is the predefined agreement between buyer and seller. Okay, so this is such a type of a agreement or a contract between a buyer and a seller. Okay, so pricing is fixed. The buyer knows what price he is buying at, seller knows what price he is selling at. So what is the mechanism of this? Let's study in detail. Okay, so according to mechanism, it sets a specific price for a unit of product or service sold in the market. The producer, the seller, sets a specific price for a unit of product or service that he is selling in the market. What's the rule? Once set, the company cannot alter it, cannot change it without informing buyers in advance. Now, whatever product or service that company is making, okay, it cannot change the price of that, it cannot alter the price of that without informing the buyers in advance. They'll have to announce the price change in advance. What is the role of pricing? It acts as a core part of the overall marketing strategy. Students, remember that pricing is the core part of the overall marketing strategy. We will understand how it is a core part of marketing strategy in the coming slides. Now, the next question is, how do you calculate pricing? Okay, if you're producing a product, how do you calculate pricing? So, the baseline math relies on covering production cost and securing a target market. So, there are two components of it, manufacturing or production cost and the profit margin. So, suppose you are making a tube of toothpaste. Okay, so in manufacturing cost, suppose the manufacturing cost is Indian rupees 30 rupees. So it includes machinery, factory expenses, electricity and labor. Okay, now you decide to keep a profit margin of 20 rupees. Now how do you keep this? It's your target margin. You are targeting 2 lakh profit across 10,000 units. If you are selling 10,000 tubes of toothpaste, your profit should be 2 lakh. It means Indian rupees 20 per tube. One tube profit margin will be 20 rupees. So the manufacturing cost is 30, profit margin is 20, so the final price has to be 50. Now there are various external pressures and internal variables that warp the baseline math. है ना, ये जो baseline math हमने की थी, इसमें डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन देख के फाइनल प्राइस हो गया. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है देखो, सी दिस ब्लू एरोज, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, देन योर मार्केटिंग मेथड्स, है ना, कमीशन वगैरह जो भी होगा, एंड देन योर प्रॉफिट मार्जिन. Now these are the main costs, okay, but there are other internal variables also. What are they? Government regulations. What are the government regulations कि आप इस चीज़ की कीमत इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते. What is the demand for the product? Okay, what is the purchasing power of the consumer? आप इंडिया में वो ट्यूब कितने में बेच सकते हैं और वही ट्यूब आप फॉरेन मार्केट में कितने में बेच सकते हैं. So it depends on purchasing power of कंज्यूमर, तो उसी पे प्राइसिंग फिक्स होगी. प्राइजेस ऑफ द कॉम्पिटिटिंग फर्म्स, है ना, ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिटिंग फर्म्स का प्राइस 20 है और आप 50 में बेच रहे हो तो आपका माल कभी नहीं बिकेगा. ठीक है, सो दीज आर सर्टेन एक्सटर्नल प्रेशर्स एंड इंटरनल वेरिएबल्स दैट कैलकुलेट द बेसलाइन मैथ ऑफ कैलकुलेटिंग द प्राइसिंग. बट नाउ वी विल टॉक अबाउट all the 5 objectives. Okay, so strategic pricing operates across 5 distinct operational objectives. तो यहाँ 5 operational objectives है pricing के, कि जब आप price कोई fix करते हो तो उसके पीछे क्या objective है, right? This is very important. The most important part of the chapter is this, क्योंकि इसी पे से questions आते हैं, तो आपको एकदम ध्यान से अब पढ़ना है. ठीक है, the first is, now I will detail all these 5 operational objectives in
we will discuss all these 5 operational objectives in detail. So the first one is profit related, कि आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट रिलेटेड है, कि आपको मैक्सिमाइज करना है करंट प्रॉफिट और ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को भी टारगेट करना है. मैं डिटेल में बताऊंगी इसको, पहले आप पांचों याद कर लो. सेकंड इज सेल्स रिलेटेड, कि आप ओवरऑल सेल्स का वॉल्यूम बढ़ाओगे तो वैसे ही बढ़ जाएगा. तो सेल्स रिलेटेड है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज़्यादा सेल होना चाहिए, प्राइस ऐसी रखो कि ज़्यादा सेल हो. थर्ड है प्राइस ऐसी रखो कि कंपटीशन को फेस कर सको, कंपटीशन रिलेटेड, ठीक है, यू कैन फेस एंड डील विद द कॉम्पिटिटर्स. फोर्थ, आपकी प्राइस ऐसी होनी चाहिए, द प्राइसिंग शुड बी सच दैट दिस ऑब्जेक्टिव इज कस्टमर रिलेटेड, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए. देन फिफ्थ इज जनरल. So under general we will talk about 3 things: market penetration, stability and survival. तो यही चीज़ पे पूरा चैप्टर बेस्ड है. आपको ये पांचों ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए: प्रॉफिट रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, कंपटीशन रिलेटेड, कस्टमर रिलेटेड एंड जनरल ऑब्जेक्टिव्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉफिट रिलेटेड. ठीक है, तो प्रॉफिट रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं. पहला होता है कि आप टारगेट कर रहे हो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाए. आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा, यू हैव इन्वेस्टेड सम कैपिटल, वो आपको रिकवर करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, है ना. ये 2 चीज़ आपको कवर करनी है. देखिए, तो कैपिटल इन्वेस्टेड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, ROI को कवर करने के लिए हमें बैकवर्ड काम करना पड़ेगा, वर्किंग बैकवर्ड, ताकि हम उल्टा जाए कि हमारा कॉस्ट रिकवर हो रहा है कि नहीं. वर्किंग बैकवर्ड टू सेट अ प्राइस दैट गारंटीज अ स्पेसिफिक प्री डिटरमाइंड रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन प्रोडक्शन, ताकि हमको पता है कि हमको इतने रुपए तो निकालने हैं. हमको मान लो कि 10 रुपये लगे थे ये काम करने में. अच्छा, प्रीवियस एग्जाम्पल में कितने लगे थे, 30 रुपीज़. तो 30 रुपीज़ तो मुझे निकालने ही है, मेरी कॉस्ट ऐसी हो कि 30 रुपीज़ तो आए ही. तो 30 इज प्री डिटरमाइंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना. कैपिटल जो मैंने इन्वेस्ट किया था ये प्रोडक्ट बनाने में, मुझे ये तो चाहिए ही. उसके अलावा मुझे मैक्सिमाइज करना है अपना करंट प्रॉफिट. सो सेटिंग अप प्राइस पॉइंट स्पेसिफिकली कैलिब्रेटेड टू मैक्सिमाइज द इमीडिएट प्रॉफिट मार्जिन फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस. तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव प्राइसिंग का क्या है, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव या प्रॉफिट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव. ठीक है. सेकंड इज सेल्स रिलेटेड ऑब्जेक्टिव. मेरी प्राइसिंग ऐसी होनी चाहिए कि मेरा सेल्स बहुत ज़्यादा हो. तो इसके अंदर देखिए हम ये 3 चीज़ कर रहे हैं. वी विल सेक्रीफाइस द शॉर्ट टर्म मार्जिन, है ना. मैं थोड़ा मार्जिन सेक्रीफाइस कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म मोमेंटम मिलेगा, मतलब लॉन्ग टर्म तक मेरा प्रोडक्ट मार्केट में रहेगा, उसका वॉल्यूम ज़्यादा बिकेगा. सो पहला है गिविंग डिस्काउंट, है ना, डिस्काउंटेड प्राइस पे. सो पहला है प्रमोट सेल्स, ऑफरिंग डिस्काउंटेड प्राइसिंग टू डेलिबरेटली बूस्ट इमीडिएट सेल्स वॉल्यूम. इमीडिएट सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, टू प्रमोट सेल्स, इमीडिएट सेल्स, आई कैन गिव डिस्काउंट. देन इंक्रीज मार्केट शेयर. आप मार्केट शेयर कैसे इंक्रीज कर सकते हो, आपका प्राइसिंग कैसे हो कि आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हो. ठीक है. कैप्चरिंग कॉम्पिटिटर्स टेरिटरी by attracting consumers purely through superior pricing. आपको कॉम्पिटिटर की भी टेरिटरी को कैप्चर करना है, वहाँ के भी कस्टमर को अट्रैक्ट करना है थ्रू सुपीरियर प्राइसिंग. आपकी प्राइसिंग दूसरे से ज़्यादा अच्छी हो, जिसकी वजह से आपको मार्केट का एक अच्छा खासा शेयर मिल जाए कि ये लोग तो मुझसे खरीदेंगे. देन टारगेट न्यू मार्केट्स. आपको अब नए मार्केट भी टारगेट करने हैं. Utilizing innovative pricing structures to penetrate completely unexplored markets and attract entirely new customer base. आपको इतनी innovative pricing structures बनानी पड़ेगी कि आप जो unexplored market है, जहाँ वो प्रोडक्ट ना तो कॉम्पिटिटर का ना आपका बिकता था, ऐसे टेरिटरी में भी आप जाके अपना प्रोडक्ट बेच सको. ठीक है. इस तरीके से आपकी प्राइसिंग होनी चाहिए. सो दिस टाइप ऑफ प्राइसिंग इज कॉल्ड सेल्स रिलेटेड, है ना. नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कॉम्पिटिशन रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स. सो प्राइसिंग एज अ स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंड अ ब्लंट वेपन. प्राइसिंग को
आप एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस और ब्लंट वेपन के जैसा यूज़ करेंगे। तो दो चीज़ें हमें करनी पड़ती है, एक तो कंपटीशन को फेस करना है और फिर प्राइस की लीडरशिप बनानी है। ये दो चीज़ों से आप कर सकते हो। पहला है फेसिंग कंपटीशन, तो ये एक डिफेंसिव टाइप की स्ट्रेटेजी होती है। ये जो होता है ये डिफेंसिव होती है ना, और ये जो होती है ये ऑफेंसिव होती है। देखिए अब क्या होती है, हम पढ़ते हैं इसको, है ना। तो इसमें टैक्टिक है पैरिटी प्राइसिंग, है ना। आप प्राइसिंग ऐसा रखो, सपोज यू आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ पेप्सी, तो आपकी प्राइसिंग इससे रिलेट इसके जैसे ही लगभग होनी चाहिए, ताकि आप मतलब डायरेक्टली निगेट कर सको कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसको मिले। अगर ये बहुत कम है और आपने बहुत ज़्यादा रख लिए तो इसको ही एडवांटेज मिलेगा। आप ऐसी प्राइसिंग रखो कि आप कंपटीशन को फेस कर सको। सो ब्रांड्स प्राइस देयर प्रोडक्ट्स इन एन आइडेंटिकल मैनर टू इंस्टेंटली निगेट एनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज द राइवल माइट गेन। कोई भी राइवल को आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देना ही नहीं है, इस तरीके से आपको प्राइसिंग रखनी है ना। कभी हम मार्केट में जाते हैं, हमें खरीदना है कोक, वो बोल रहा है कोक नहीं है पेप्सी है, तो प्रोडक्ट तो सेम ही टाइप का है लेकिन दोनों की कॉस्ट भी सेम है तो आप ले लोगे। लेकिन अगर पेप्सी बहुत महंगा है तो आप नहीं लोगे, आप दूसरी दुकान पर जाके कोक ही ढूंढोगे, राइट। नाउ नेक्स्ट इज प्राइस लीडरशिप। आपका ऑब्जेक्टिव है कि हम ऐसी प्राइसिंग रखें कि हम प्राइस लीडरशिप हो जाए। आपको याद है जब लेज मार्केट में आया था, 5 रुपीज़ का जब लेज इंट्रोड्यूस हुआ था, तो सभी जो लोकल ब्रांड्स है या दूसरे ब्रांड्स है वो ख़त्म हो गए थे उस वक्त, राइट। तो डिसरप्टिव प्राइसेस रखिए, ठीक है। सो द टैक्टिक इज डिसरप्टिव वाया स्केल। स्केल इतना बढ़ गया उसका, है ना। एग्जाम्पल है लेस का 5 रुपये का पैक। आउटकम डिलीवरिंग आइडेंटिकल क्वालिटी एट अ लोअर प्राइस टू इस्टेब्लिश इमीडिएट मार्केट लीडरशिप, एंटायरली लॉकिंग लोकल एंड अनब्रांडेड कॉम्पिटिटर्स आउट, है ना। आप ऐसी प्राइसिंग लेके आ जाओ या तो कि आप इमीडिएटली मार्केट लीडरशिप मिल जाए। हर कोई, अगर आप सेम क्वालिटी दे रहे हो तो हर कोई वही वाला खरीदना चाहेगा जो कम कॉस्ट का है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, आपकी प्राइस लीडरशिप हो गई ना। तो इसी चीज़ को एक और अलग वे में समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। बाय इंट्रोड्यूसिंग द सेम क्वालिटी एंड क्वांटिटी एट अ मच लेसर प्राइस, बिगर कंपनीज अचीव प्राइस लीडरशिप। This active defense mechanism keeps competition away and negates rivals' competitive advantage. अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कस्टमर रिलेटेड। कस्टमर ही माई बाप होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, इट्स अ डेलिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंज्यूमर ट्रस्ट। नाउ इमेजिन अ ब्रिज बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर, है ना। एक तरफ है कंपनी का प्रॉफिट रिक्वायरमेंट, कंपनी चाहती है कि प्रॉफिट हो, और एक तरह कंपनी ये भी चाहती है कि कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो, है ना, जिसकी वजह से उसका ब्रांड चलता रहे। और उसके बीच का ये ब्रिज है, ये ऑब्जेक्टिव, है ना, विनिंग द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। सो प्राइसिंग इज द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड सेटिस्फैक्शन, ना। जो प्राइसिंग है ये प्राइसिंग है ना, दिस इज the bridge is pricing. So pricing is the physical connection between the marketing strategy of company and the consumer satisfaction. If the price is too high, suppose price बहुत ज़्यादा high है, तो क्या consumer satisfied होगा? नहीं। If the price is too high, the bridge will collapse from dissatisfaction, है ना। ये satisfaction अगर हट गया, यहाँ से इसकी नींव हट गई, तो ये bridge collapse नहीं हो जाएगा ना। So, and if the prices is too low, it collapses from lack of profit. अब प्रॉफिट ही नहीं होगा यहाँ पे, अगर प्राइस टू लो है तो भी ये कोलैप्स हो जाएगा। तो हमें प्राइसिंग इस तरीके से सेट करनी है कि एक बैलेंस बना रहे, जिससे कि हमें प्रॉफिट भी हो और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी बना रहे। लास्ट कैटेगरी इज जनरल ऑब्जेक्टिव्स। मैंने आपको बताया था इसमें 3 हैं, ठीक है। तो पहला है मार्केट पेनिट्रेशन। एग्रेसिव प्राइसिंग एक्ट एज अ वेज टू पेनिट्रेट अनएक्सप्लोर्ड मार्केट। दिस इज अ वेज स्टूडेंट्स, आप देखो डायग्राम में ये जो तीखा है ना, इसे वेज कहते हैं, जिससे कि पेनिट्रेट हो सकता है वो इजीली अनटैप्ड मार्केट में। तो मैं एग्जांपल लूँगी यहाँ पे रिलायंस के जियो ऑफर का ना। तो रिलायंस कम्युनिकेशन ने जब जियो लेके आया था तो इतना
इतना कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग था उसका कि वो आराम से अनएक्सप्लोर्ड मार्केट को भी उसने पेनिट्रेट कर दिया था, राइट। मीन्स even poor people, middle class people, the rich people, all were able to afford it. Jio was very famous in villages, in towns and cities everywhere. So ये competitive pricing से क्या होता है कि unexplored markets में आप easily penetrate कर सकते हो, which is called market penetration. And usually ये कब use होता है, जब आप कोई नया product market में ला रहे हैं, है ना. So when you are promoting a new product and you are promoting the new product to make it immediately attractive to customers. Customers immediately कैसे attract होंगे, जब उनको इतनी अच्छी aggressive pricing मिलेगी. General objectives के अंदर ही there is another thing called stability. Price stability wins consumer confidence and prevents seasonal irritation, है ना. देखो स्टेबल प्राइसिंग होगी थ्रू आउट द ईयर तो उससे ट्रस्ट बिल्डअप होता है. कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद द कंसिस्टेंट बेनिफिट टू प्राइस रेशियो. तो ये सुपरमार्केट मॉडल है, यहाँ पे यूजुअली प्राइजेस हमेशा स्टेबल रहती हैं. द लोकल मार्केट मॉडल, ठीक है, सीजनल वेरिएशन होता है यहाँ पे. सो सडन प्राइस हाइक्स फॉर द सेम प्रोडक्ट लाइक सीजनल वेजिटेबल्स कंफ्यूज एंड अनॉय द कंज्यूमर्स, है ना. तो मॉल में वही फ्रूट आपको पूरा साल मिलेगा वही प्राइसिंग पे, बट लोकल मार्केट में उसका सीजनल वेरिएशन हो जाता है, राइट. सो दिस इज द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कि स्टेबल प्राइसिंग रखी जाए. तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स के अंडर वन मोर थिंग इज सर्वाइवल. सो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज मस्ट एक्टिवली इवॉल्व टू इंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ. प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हमेशा कंटिन्यूसली इवॉल्व होनी चाहिए, वक्त के साथ साथ चेंज होती रहनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट सर्वाइव करे और ग्रो भी करे, ठीक है. कोई भी जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है, देखो इंट्रोड्यूस होता है तो धीरे 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 उसकी सेल्स बढ़ती है, ठीक है. फिर वो एक फेज होता है जब वो ग्रो हो रहा होता है, लोग उसको खरीद रहे होते हैं. आफ्टर सम टाइम्स सी जैसे कि एक नोकिया फ़ोन है ना, पहले ग्रो हुआ, आफ्टर सम टाइम लोग उससे बोर हो गए, नए नए दूसरी चीज़ आ गई, तो मैच्योरिटी हो गई ना, लोग अब नहीं खरीद रहे थे और नए प्रोडक्ट्स जैसे आने लगे तो उसका डिक्लाइन हो गया. So throughout the entire life cycle of a product, a company must continuously alter its pricing strategy. This adaptability ensures that profit is earned and the survival is secured. है ना. अगर आप उसके प्राइस को चेंज करते रहोगे स्ट्रेटेजिकली तो क्या होगा, आप इंश्योर करोगे कि वो सर्वाइवल हो उसका, है ना, और प्रॉफिट भी आता रहे एट एवरी स्टेज ऑफ दिस साइकिल. तो बच्चों यहाँ चैप्टर तो खत्म हो गया है. मैं दो चीज़ आपको रिवाइज कराना चाहती हूँ, एक तो स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑफ्स और यही प्राइसिंग चीट शीट, ठीक है. तो जल्दी से फटाफट इसको समझने की कोशिश करते हैं. ऑल्सो स्टूडेंट्स, आई विल बी गिविंग यू द डिटेल्ड नोट्स, है ना. मैं आपको डिटेल नोट्स इसी वीडियो के एंड में, जब आप यूट्यूब पे वीडियो इसको एंड करेंगे तब आप नीचे देखेंगे, आप ड्राइव का एक लिंक दे रखा होगा, उसमें हर चैप्टर के मैं आपको डिटेल नोट्स दूंगी जो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं पॉइंट वाइज, और वैसे ही आंसर्स एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है. तो चलो स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑफ्स करते हैं. ये सबको आप प्लीज़ बता देना और प्लीज़ सब्सक्राइब, तभी आप वो नोट्स को ले पाओगे, ठीक है. आई हैव गिवन यू ऑल नोट्स पॉइंट वाइज, एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंट, हर एक चीज़ कवर करके, ठीक है. अच्छा चलो, अब यहाँ बोला है कि नो सिंगल प्राइस कैन अचीव ऑल द ऑब्जेक्टिव साइमल्टेनियसली. 5 ऑब्जेक्टिव्स थे अपने, इफ़ यू रिमेंबर, लेकिन एक प्राइस हर ऑब्जेक्टिव को एक साथ नहीं अचीव कर सकता है. तो देखिए, फर्स्ट इज मैक्सिमाइजिंग करंट प्रॉफिट, ये पहला था अपना, है ना, प्रॉफिट वाला. तो अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने जाते हैं तो हमारा फोकस क्या होता है, हाई पर यूनिट मार्जिन. हमारी मार्जिन हाई होगी तभी हमारा करंट प्रॉफिट हाई होगा. लेकिन इसमें ट्रेड ऑफ क्या हो जाएगा, मतलब इसमें क्या हमारा नुकसान हो जाएगा, इसकी जगह हमें क्या देना पड़ जाएगा, लोअर ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम. कि अगर हमारी पर यूनिट प्राइस मार्जिन ज़्यादा होगी तो हमारी ओवरऑल सेल्स की वॉल्यूम कम हो जाएगी. लेकिन इसका प्राइमरी बेनिफिशियरी कौन होगा, इससे फ़ायदा किसको मिलेगा, ये क्या क्या फ़ायदा है, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल शीट्स है ना. शॉर्ट टर्म तो फ़ायदा है आपको कि आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन लंबे समय तक अगर आपका वॉल्यूम ही कम हो गया तो आपको फ़ायदा नहीं है, ठीक है बच्चों. अब दूसरा था इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर.
यहाँ देखो फोकस क्या होता है कि हम हाई वॉल्यूम पे बेचें वाया अट्रैक्टिव प्राइसिंग, अट्रैक्टिव प्राइसिंग दे और हाई वॉल्यूम हमारा ज़्यादा हो, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिके हमारे। तो इसका ट्रेड ऑफ क्या है, इससे क्या कमी है कि हमारा इनिशियल प्रॉफिट मार्जिन कम मिलता है, लेकिन प्राइमरी क्या बेनिफिट होता है, लॉन्ग टर्म मार्केट डोमिनेंस, हम लॉन्ग टर्म तक मार्केट में हम डोमिनेट बने रहते हैं। फिर देखिए प्राइस लीडरशिप, जो मैंने 5 रुपये का लेस का एग्जाम्पल लिया था, उससे क्या, उसका फोकस क्या होता है, अंडर कटिंग कॉम्पिटिटर्स, सब कॉम्पिटिटर्स को कट कर दो, ठीक है। सो ट्रेड ऑफ इसमें क्या है, मार्जिन्स आर टेम्परली स्क्वीज्ड टू बिल्ड अ कॉम्पिटिटिव मोड। अब प्राइमरी बेनिफिशियरी क्या है, ब्रांड डिफरेंशिएशन एंड सर्वाइवल। दो चीज़ों का हमें बहुत फायदा होता है, हमारा ब्रांड एकदम डिफरेंशिएटेड, सबको पता है, पता चलता है, और सर्वाइव भी ज़्यादा टाइम तक करता है मार्केट में। अब ये देखो प्राइस स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग चीट शीट, प्रॉफिट, सेल्स, कंपटीशन, कस्टमर, जनरल, ये 5 पॉइंट को लेके फिर से एक शॉर्ट में समझाया गया है। जब पहला ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट बेस्ड, उसमें हमारा क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, ड्राइव ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाना है हमें और इमीडिएट रिटर्न लाना है। सिंपल मैथ है इसमें, कॉस्ट के साथ मार्जिन जोड़ो तो प्राइस मिल जाएगा। नाउ सेल्स है ना, सेल्स हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा सेल्स ज़्यादा हो, सो एसिलरेट वॉल्यूम एंड शेयर, वॉल्यूम बढ़ेगा, बड़ा, और शेयर, मार्केट शेयर भी। क्या मेथड यूज़ करेंगे हम इसमें, डिस्काउंटिंग एंड इनोवेटिव स्ट्रक्चर्स। तीसरा था कंपटीशन, है ना, कंपटीशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव। सो बिल्ड अ प्रोटेक्टिव मोड, ऐसा प्रोटेक्टिव मोड बना दे जिससे कि हमारी ही लीडरशिप हो, एग्जाम्पल आपको पता ही है। देन कस्टमर बेस्ड, विन एंड मेंटेन ट्रस्ट, है ना, कस्टमर वाले में क्या ऑब्जेक्टिव में क्या था कि हमें उनका ट्रस्ट विन करना है, उसको मेंटेन करना है। तो मेथड क्या है, वैल्यू अलाइनमेंट एंड म्यूचुअल बेनिफिट, हमको एक बैलेंस बनाए रखना है। देन फिफ्थ वॉज जनरल, एक तो था पेनिट्रेट करना मार्केट को, फिर स्टेबलाइज करना, ठीक है, और सरवाइव करना, 3 चीज़। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। सो चिल्ड्रेन, I have explained you everything in detail, so explanation part is done. Okay. अगर एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करने की बात है तो मैंने आपको डिटेल्ड नोट्स भी नीचे दे रखे हैं, आप जाके नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, डिटेल्ड नोट्स दे रखे हैं और आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। सो फॉर दिस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, इन्फॉर्म ऑल योर कॉमर्स फ्रेंड्स about this channel and tell them to subscribe. I'll be giving you videos of commercial studies and also economics. Okay, along with it our channel also have videos on English, Hindi, social science, and for your science friends we have physics, chemistry, biology, everything for ICSE class 10. So do not forget to subscribe to Zenith Academy Online. Bye bye my dear students.